Hello all my dear students, good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am present here with your new chapter, that is what? Chapter number 6, that is combustion and flame. Up till now we have discussed about 5 chapters and the last chapter was coal and petroleum. So today we will start with new chapter, that is what? Combustion and flame. So without wasting the time, let's quickly start. So the name of the chapter is what? Combustion and flame. Combustion and flame. You have observed various kind of objects near you that just generally burns, and after burning they release a huge amount of energy, or we can say that they release heat, they also produce sound. All those जो भी आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं चीज़ें जलते हुए, ठीक है, वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की वजह से होती हैं. तो वो हम देखेंगे कि कितने तरह के कंबशंस होते हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ से सबसे पहले आपको पढ़ने हैं. सो द टॉपिक दैट विल बी कवर्ड हियर. तो टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है आपको? टॉपिक नंबर 1 दैट इज कंबशन, और इस कंबशन के बाद आप देखेंगे बेटा टाइप ऑफ कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन, then again fuel, okay, as well as types of fuel, okay. Then after we will also discuss that calorific value of fuel, calorific value of fuel. So all these points will be discussed in this chapter. So without wasting the time, let's quickly start. First point, that is combustion. So what is combustion? Combustion is a chemical process in which any substance reacts with oxygen or air to give off heat. यानी कंबशन क्या होता है? कंबशन एक तरह का कैसा प्रोसेस है? दिस इज ए केमिकल प्रोसेस. इसमें होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से. क्या देता है? हीट को प्रोड्यूस करता है. सो कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस in which a substance or any substance react with oxygen or air to give off heat. So this process is known as what? Combustion. Burning of wood. आपने देखा होगा ठंडियों में आप अलाव सेकते हैं, तो उसमें जब कभी कभी आग नहीं जलती है तो आप क्या करते हैं? फूंक मारते हैं. तो ऑक्सीजन जब जाती है तो वो क्या कर जाता है? बर्न कर जाता है. ठीक है. तो जो वुड की बर्निंग है ये भी एक तरह का क्या है? कंबशन है. बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, यू कैन ऑल्सो राइट बर्निंग ऑफ वुड और पेपर इज द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. द substance that undergo combustion is said to be combustible. जो भी सब्सटेंस है या जो भी मटेरियल है वो अगर कंबशन कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो कंबस्टिबल मटेरियल है. और वी कैन ऑल्सो राइट इट फ्यूल. दैट मे बी जो कि हो सकता है सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म. ठीक है बेटा. यानी यहाँ से देखिए कंबशन क्या था? कंबशन में कोई भी एक सब्सटेंस था जिसने ऑक्सीजन से या एयर से रिएक्ट किया और हीट को प्रोड्यूस किया. ओके. एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कंबशन और दैट अंडरगो केमिकल प्रोसेस ऑफ कंबशन is known as combustible substance, or that is also known as fuel, and it may exist in all three forms, that is solid, that is liquid or gaseous form. So यहाँ से हम देख सकते हैं a combustion reaction
कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से एक रिएक्शन देखते हैं बेटा। चारकोल react with air, charcoal react with air to give off carbon dioxide, heat. This one is carbon या चारकोल कह सकते हैं आप इसको। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? एयर से। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन, दिस वन इज ऑक्सीजन, it will give rise to carbon dioxide and it will also produce heat. So this one is what? Carbon dioxide. So a typical combustion reaction can be written as that charcoal or carbon react with oxygen or air to give off heat as well as carbon dioxide. We will consider that substances, those burnt may be combustible or may not be combustible, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कंबस्टिबल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंबस्टिबल नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे? अगर आप पेपर को कंसीडर करो, इफ यू विल कंसीडर वुड, पेपर, ऑल दीज आर कंबस्टिबल। इफ यू कंसीडर व्हाट? स्टोन, आप पत्थर को कंसीडर करें तो वो कंबस्टिबल नहीं होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इनफ्लेमेबल substances are those which catch fire easily, यानी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, या आप कह लीजिए इसको फ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज which catch fire easily. Important point, these have, it means that inflammable substances, these have very low ignition temperature. ignition temperature का मतलब क्या होता है? These have very low ignition temperature. It means that temperature at which they catch fire, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, दैट इज नोन एज व्हाट? इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर इनका बहुत ही कम होता है। किसका? जो सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? इनफ्लेमेबल या कंबस्टिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डू, एक पहली क्वेश्चन पूछ रही है, वाई डू वी कंसीडर food as fuel for our body? हम अपनी बॉडी के लिए फूड को फ्यूल क्यों कंसीडर करते हैं? तो आपको पता होगा, as we know that food or component of food undergo digestion, and after digestion they are just break down into simpler forms by the process of रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है बेटा कि आपके जो फूड आपने लिया था, फूड आइटम्स थे, डाइजेशन के बाद उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर substances that react with oxygen, to produce energy, or we can write heat to do work. कोई भी काम करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है?
सबसे पहले आप खाना खाते हो, खाना का डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है, या वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के फलस्वरूप वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है अलग अलग काम को करने के लिए। सो दैट्स वाई food is considered as fuel for our body because it's providing the heat or it's providing the energy to do the work। हमको काम करने के लिए फ्यूल या ईंधन या एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फूड से। फूड से कब, पहले तो इसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है यानी डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के फलस्वरूप ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई फूड इज कंसिडर्ड एज व्हाट, फ्यूल फॉर आवर बॉडी। नाउ वी विल कंसिडर फ्यू मोर पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कंबस्जन, यानी कंबस्जन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट at least there will be, there should be 3 conditions. First air, second fuel, and third ignition, temperature और heat। यानी ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। कौन सी, कंडीशन फॉर कंबस्जन, presence of air is mandatory, there should be fuel that is also known as combustible substance जिसका combustion होना है, और ignition temperature या heat होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। so these 3 conditions are necessary। air से आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। fuel, this is itself combustible substance that will produce heat or that will produce energy, and for that there should be an ignition temperature। जैसे मान के चलते हैं घरों में आप LPG स्टोव या गैस चूल्हा जलाते हैं तो सबसे पहले उसमें आप लाइटर या माचिस से उसको जलाने का प्रयास करते हैं। तो जो लाइटर माचिस है वो क्या कर रही है, इग्निशन टेम्परेचर को प्रोवाइड कर रही है। फिर आपकी एलपीजी क्या कर रही है, जल रही होती है, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। सो ऑल दीज कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द कंबस्जन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है बेटा, इग्निशन temperature। so what is ignition temperature? this is the lowest temperature at which a substance catch fire or starts burning। यानी ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे भी कोई सब्सटेंस क्या कर दे, फायर को कैच कर ले या बर्निंग स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ सब्सटेंसेस हैं और इधर हम देख लेते हैं इनके इग्निशन टेम्परेचर कितने हैं। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सम सब्सटेंसेस वी आर डिस्कसिंग हियर। white phosphorus 35 degree centigrade, petrol 246 degree Celsius, next diesel, next kerosene, we will discuss all these also। बेटा 2110 degree Celsius, 220 degree Celsius। एक और देख लेते हैं वुड है बेटा 300 डिग्री सेल्सियस। सो ऑल दीज आर द इग्निशन टेम्परेचर। वी विल डिस्कस हियर कोल का होता है बेटा 454 डिग्री सेल्सियस। यानी देखें यहाँ से तो हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर कहाँ है, इन द केस ऑफ कोल, एंड लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर इज हियर इन द केस ऑफ वाइट फास्फोरस। दैट्स वाई दिस इज वाई व्हेन कम्स in contact with air this catch fire rapidly। so this was all about ignition temperature। now we will discuss about types of combustion। यहाँ से देख लेते हैं types of combustion। type of combustion we will discuss majority 3 हम यहाँ से देखेंगे। first,
second and third. तो first one is rapid combustion, second one is spontaneous combustion, and the third one is explosion. तो बेटा यहाँ से मेजरली में हम 3 देख रहे हैं, अभी 2 और देखेंगे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन, वो बात की बात है. सो रैपिड कंबशन एज वेल एज स्पॉन्टेनियस कंबशन एज वेल एज एक्सप्लोशन. कैसे होते हैं? रैपिड कंबशन मीन्स द सब्सटेंस दैट कैच फायर क्विकली और ईजिली. रैपिड मतलब तेज़ी से, जो आसानी से या बहुत तेज़ी से फायर को कैच कर ले. स्पॉन्टेनियस मीन्स दैट द सब्सटेंस और मटेरियल दैट कैच फायर इटसेल्फ, जो अपने आप फायर को कैच कर ले, हमको कुछ ना करना पड़े. और एक्सप्लोशन का मतलब हुआ टाइप ऑफ कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड एज वेल एज एनर्जी इज रिलीज. सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. देखते हैं कंबशन इन विच large amount of heat and light is released in short time. यानी ऐसा कंबशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट रिलीज होती है, कितने में? बहुत ही कम समय में. इट मीन्स दैट इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट दिस इज वेरी क्विक और टेक्स प्लेस रैपिडली. ये बहुत तेज़ी से होता है बेटा, या एक क्विक प्रोसेस है. यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे आप बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर एज वेल एज बर्निंग ऑफ CNG एंड LPG. CNG LPG और पीस ऑफ पेपर, ये आसानी से बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? फायर को कैच करते हैं, जिससे हीट और लाइट दोनों रिलीज होती है. अब हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन. ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे टाइप ऑफ combustion in which material suddenly burst or catch fire without any heat is known as spontaneous combustion. In other words we can write, हम क्या लिख सकते हैं? substance that catch fire or burns itself. ठीक है, जो मटेरियल अपने आप बर्न हो जाए, अपने आप कैच कर ले फायर को, उसे आप क्या कहोगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन. फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले सकते हैं बर्निंग ऑफ वाइट phosphorus and sometimes forest fire or burning of white phosphorus is considered as what? Spontaneous combustion. Okay, explosion क्या है? This is what type of combustion takes place suddenly and release huge amount of light heat, sound and gases. यानी ऐसा कंबशन जो अचानक से होता है
और उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट, हीट, साउंड और गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं क्रैकर्स। यानी आपने देखा होगा जो क्रैकर्स हम लोग बर्न करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लोशन का, या जो भी हाइड्रोजन बम, एटम बम आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, या विस्फोटक सामग्री यूज़ की जाती है, गोले दागे जाते हैं, मोर्टार दागे जाते हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एक्सप्लोशन। आपने देखा होगा आतंकवादी वगैरह जो आते हैं, ठीक, अपने आप को बम से उड़ा लेते हैं, तो वो एग्जाम्पल किसका है? एक्सप्लोशन का है। वेरियस कैटेगरी ऑफ कंबस्शन, जिसमें हमने रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और एक्सप्लोशन देखा। रैपिड कंबस्शन में वो बहुत तेज़ी से फायर को कैच करता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन अपने आप हो जाता है बिना हीट सप्लाई किए, और एक्सप्लोशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट, साउंड और गैसेस का रिलीज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंबस्शन। नाउ वी विल डिस्कस टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। तो दो और देख लेते हैं बेटा। कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन, combustion that takes place when combustion that takes place when air or oxygen is present, यानी हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स takes place in presence of ऑक्सीजन। ऐसा कंबस्जन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको आप क्या कहते हो? कंप्लीट कंबस्जन। और इसमें रिलीज क्या होगा? में क्या रिलीज होगा? इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। दूसरा हम देख लेते हैं इनकम्प्लीट कंबस्जन। इनकम्प्लीट कंबस्जन, इसी का जस्ट वाइस वर्सा, combustion that takes place in absence of air or presence of very low amount of ऑक्सीजन एंड रिलीज। ये क्या रिलीज करेगा? एंड रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज हीट एंड लाइट। यहाँ पे क्या होगी बेटा? यहाँ पे मोर हीट रिलीज होगी, ज़्यादा हीट, मोर हीट एंड मोर लाइट। यहाँ पे क्या होगा? लो हीट एंड लो लाइट या डिम लाइट। यहाँ से कम हीट और कम लाइट रिलीज होगी, यहाँ पे ज़्यादा हीट और ज़्यादा लाइट रिलीज होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट कंबस्शन एंड इट्स types. In the next video we have to discuss about fuel as well as ignition as well as various calorific value of fuel. So we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching the video.